Welcome to the Future Tech Spotlight online learning platform. So that is what pre-processing is, where we require to clean our data, we require to transform our data. Now, what is the meaning of this transform? ठीक है, तो transform में हम क्या करते हैं? Yes, anyone? Transform means we are converting data from one format to another format. Okay, so maybe possible we are transforming column from one column to two column. Let's say we are having full name and we are transforming it into first name and last name. Or maybe possible we are having salary data in the form of, let's say, basic salary, DA, then LTA, something like that, plus bonus, and you required a net and gross salary based on some formula. Okay, then after, let's say you are having some data in the form of, let's say salary data we are having, and you want in the salary group, that is range. Okay, कौन सी range में ये salary fall हो रही है, ठीक है? Then you required to add some columns. Okay, let's say sequence number you want to add, or so there are so many things you can do with the data. And when you are transforming data from one form to another format, then it is a kind of data transformation. Okay, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और भी हायर लेवल पे होता है जब डेटा वैलिडेशन होता है, ठीक है? बट अभी हम बहुत ही बेसिक लेवल के डेटा ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, ठीक है? नाउ टू do this type of data transformation, we are having a Pentaho software, which very well used in the corporate also. Okay, so in this case, you require to install first of all Java. ठीक है, तो सब लोगों ने तो जावा इंस्टॉल किया ही होगा, बिकॉज ऑलरेडी यू आर हैविंग एडवांस जावा सब्जेक्ट. So I assume that everyone is having Java, but still if you are not having that, I have given to you that software drive link where Java software is there. Okay, so you just download that and install Java first properly. After installing Java, you require to set environment variable. So I know now that you also know that you require to set the environment variable. So quickly I will show you how to set the environment variable. Okay, so I just share my screen first. Is my screen visible to you, students? Fine. Okay, so the screen is visible, right? Yes, So now, ma'am. yes, so what you require to do is you require to go to your this PC or computer, whatever my computer is there, and then right click and then go to property. Okay, so you will get this, or if you are having Windows 7, तो आपको कुछ और मिलेगा, पर वहां पे आपको ये एडवांस सिस्टम सेटिंग करके मिलेगा, ठीक है? एडवांस मिलेगा वहां पे, दूसरा डायलॉग बॉक्स है, तो this option will be there. And then after you go for the environment variable. अब यहाँ पे आपको पाथ सेट करना है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे पाथ सेट करना है, और पाथ आपका क्या होना चाहिए? जेडी के बीन तक का आपका जो है वो पाथ सेट होना चाहिए. देखो यहाँ पे मैंने जेडी के बीन तक का पाथ जो है वो सेट किया हुआ है. और वो कहाँ पे सेट करना है? इन योर सिस्टम वेरिएबल. इन योर सिस्टम वेरिएबल. If in the system variable, let's say path command path is not there, then you require to go for the new system variable and give the variable name path, and the value is up to b. Okay, ये सबने किया होगा, but still if you have not done, then do this. Okay, so यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो है मेरा वो path है, ठीक है? तो वहाँ पे वेरिएबल का नाम आएगा path, और इसमें ये आपको वैल्यू में ये डालना है. कहाँ पे डालना है? जब आप न्यू करेंगे, इफ यू डोंट हैव दैट वैल्यू, देन पाथ एंड वैल्यू यू डालना है, ठीक है? ओके, नाउ और उसके बाद मैंने आपको एक फोल्डर दिया था डेटा इंटीग्रेशन. और जो डेटा इंटीग्रेशन आपने डाउनलोड किया है, उसके अंदर उसको इंस्टॉल नहीं करना है, इट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड. ओके, उसमें आपको क्या करना है? आप जब देखोगे वो फोल्डर को, तो वो फोल्डर के अंदर एक spoon.bat फाइल है, विंडोज बैच फाइल स्पून, उसको क्लिक करना है, ठीक है?
तो मैं पहले जो ओपन है उसको बंद कर देती हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको खोल पाऊंगी, ठीक है। तो जब हम इसको ओपन करते हैं तो देखो यहाँ से वो निकल जाएगा, है नहीं, बट आपको स्क्रीन के पीछे मिलेगा ये रिपोजिटरी कनेक्शन, यहाँ पे आपको कैंसिल कर देना है, ठीक है। कैंसिल करने के बाद यू विल गेट द स्टिप्स, सो क्लोज द स्टिप्स and then you will get the real work environment. Okay, so this is what your Pentaho software is. Okay, so ये Pentaho software के ऊपर हम लोग आज काम करने वाले हैं। और तो ये सबको विजिबल है यहाँ पे students, this is visible, right? Okay, now as we have already learned in ETL that we work on different type of databases, right? Okay, तो यहाँ भी हम अलग अलग डेटाबेस के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। बट आप MS Access पे भी काम कर सकते हो, CSV में भी काम कर सकते हैं आप। यहाँ पे ये जो ID आपको मिल रहा है उसमें ये जो सारे हैं उसमें फर्स्ट 2 इज योर इनपुट एंड आउटपुट फोल्डर। ओके, सो ये जो डिजाइन वर्कस्पेस है उसमें आपकी जो इनपुट है, दिस इज नथिंग बट टाइप ऑफ डेटा इनपुट यू आर गिविंग फॉर ETL प्रोसेस। ओके, सो टाइप ऑफ डेटा इनपुट कैसे, वो एक्सेबल फॉर्मेट में हो सकता है, ग्रिड फॉर्मेट में, डीसीरियलाइज, ईमेल फॉर्मेट, देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ फॉर्मेट यू कैन सी, ठीक है। ये सारा टेबल फॉर्मेट, टेक्स्ट फाइल, XML, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक्सेस, बहुत सारे टाइप है, ठीक है। तो ये सारी टाइप से डेटा अगर आपको एक्सेस करना है, मतलब एज ए इनपुट लेना है तो ले सकते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन होगा और उसके बाद डेटा कहाँ जाएगा, आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट डेस्टिनेशन अलग होगी और यहाँ से जहाँ से आप डेटा को ले रहे हो वो जगह अलग होगी। इतना समझ में आया सबको? तो इन बिटवीन हमारा क्या रहता है, ETL प्रोसेस, या व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ETL, कौन बताएगा? Extraction, transform and load. यस, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। तो एक्सट्रैक्ट कहाँ से करना है, तो जहां से हम डेटा को लेने वाले हैं वो आपका एक्सट्रैक्ट प्रोसेस हो गया, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म में हम ये सारे जो ऑपरेशंस है वो परफॉर्म करेंगे, दिस आर द ऑपरेशंस इन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और आउटपुट में क्या होगा, लोड, वी आर लोडिंग द ट्रांसफॉर्म्ड डेटा इन द आउटपुट डेटाबेस, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। ETL यहाँ पे इनपुट अपना क्या हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म, ये सारी चीजें हो गई, और आउटपुट लोड मतलब ये आउटपुट। क्लियर? अगर कुछ भी प्रॉब्लम है यू जस्ट स्टॉप मी इन बिटवीन, वी विल डिस्कस व्हाटएवर द प्रॉब्लम इज। ओके, नाउ in input, first of all we want to see how we can use data, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक्सट्रैक्ट कैसे करें, ठीक है। तो सपोज अगर हम MS Access यूज करते हैं, ठीक है, तो ये MS Access कहाँ से मिलेगा आपको, तो मस्ट हैव MS Access डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का ID है, सबको वहां पे टेबल बनाना आता ही होगा, ऑफकोर्स डेटाबेस बनाना आता होगा, ठीक है। Yes, ma'am. तो यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करके डेटाबेस का नाम दे दो, ठीक है। तो इधर टैम्प डेटाबेस करके मैंने नाम दिया है, उसको कहाँ पे सेव करना है, तो देखो ये कहाँ सेव हो रहा है, यूजर मीरा डॉक्यूमेंट, नहीं ये यहाँ पे सेव नहीं होना चाहिए, कहीं और सेव होना चाहिए, तो उस हिसाब से उसको चेंज करना है, यहाँ से उसका डेस्टिनेशन चेंज करना है। क्लियर? ठीक है। सपोज मैंने वही रखा है, तो यहाँ पे क्रिएट हो गया, क्रिएट होने के बाद टेबल बनेगा, टेबल में ये सारे फील्ड है, एक एक करके आप फील्ड डालो, उसके बाद उसके ऊपर डेटा हम डाल सकते हैं, ठीक है। आई एम हैविंग वन रेडी डेटाबेस ओवर हियर, ठीक है। तो एक रेडी डेटाबेस देखते हैं, ठीक है। डेटाबेस का नाम है टेक्स एक्सेल, और माई स्टाफ करके डेटा है यहाँ पे, और डेटा के अंदर है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, जिप कोड, एज, सैलरी एंड बोनस। सो दिस आर द
9 columns we are having, and including ID, 10 columns are there. Okay, clear everyone? So these are the column we are having. Okay, now if we can see, you can see in the state there are some data which are null. कुछ data जो है उसका data empty है, ठीक है? So that is also there. So that type of data we are having currently. Okay. Now suppose we want to load this type of data first of all. ठीक है? तो load करने के लिए क्या करना है आपको? So go to MS Access input. Why Access input? Because Access data को ले रहे हैं. अगर Excel data को लेना है तो Excel को यहाँ पे रख दो. CSV data लेना है, CSV को यहाँ पे रख दो. ठीक है? जो भी डेटा चाहिए उस हिसाब से आपको इनपुट फॉर्मेट लेना है. Excel also don't worry. Okay. Currently we are working with the Access. Okay. Now double click on this, and you require to choose that file which we are using for this particular transformation. Okay. So go to browse. और ये तो यहाँ पे दो है. एक्चुअली मुझे है ना स्टाफ डेटा चाहिए. मैंने डाउनलोड में एक स्टाफ डेटा डाउनलोड किया था. दैट वी कैन यूज. हाँ, तो यहाँ पे एक स्टाफ डेटा सेम टेबल है, सिर्फ डेटाबेस का नाम स्टाफ है. ठीक है, और अंदर टेबल का नाम भी स्टाफ. ठीक है, क्लियर हुआ? ये डेटाबेस एक बार देखना है तो देख लेते हैं हम लोग. डेटा इज देयर इन द डाउनलोड में स्टाफ. ठीक है, और उसके अंदर स्टाफ एक स्टाफ करके टेबल है, और उसमें मैंने थोड़ा डेटा डाला हुआ है. ठीक है, क्लियर हुआ सबको ये? तो ये हम अभी यूज करेंगे. ठीक है, अच्छा, तो ये डेटा मैंने सिलेक्ट किया, ओपन. ठीक है, तो ये ओपन हो गया. यहाँ पे देखो डेटाबेस का एक्सटेंशन क्या है? ACCDB. ओके, तो ACCDB का मतलब हुआ कि आपका जो एक्सेस है वो 2000 एक्सेस डेटाबेस. एक्सेस डेटाबेस जो है वो 95 के ऊपर का वर्जन है. ठीक है, अच्छा, तो अभी ये जो डेटाबेस हमने लिया, उसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे देखो बहुत सारी टैब है. सो गो टू नेक्स्ट टैब. अब यहाँ पे नेक्स्ट टैब में जाने से पहले यू रिक्वायर टू ऐड दिस फाइल. तो ये हमारे सिलेक्शन में ये फाइल आती है, सिलेक्टेड फाइल. कौन सी है? staff.accdb. ओके, एंड देन आफ्टर गो टू कंटेंट. Now what this content will do? Now maybe possible in one database you are having 10 tables. So on which table you want to work? So we required to select table. So now there are so many tables which are the default table, but here we are having staff table because we know in our Access database only one staff table is there. Okay, so staff table is there. Clear? Second tab is for the selection of the table. Now go for the third. Third is for field. Now suppose you are having 10 field, but you want to work on only 5 field. That is possible. Okay, so that way, because in ETL process also we are extracting data, right? It means we are not taking data as it is. Whatever the data required, that only we will extract, right? So this is the extraction we are doing over here. That how many columns you required for this transformation. Clear? So get field. ठीक है, तो यहाँ पे सारे फील्ड हमने ले लिए. सपोज आपको फील्ड नहीं चाहिए, राइट क्लिक करके डिलीट मारो उसको. ठीक है, तो क्लियर डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो जैसे कि ये वाला फील्ड हमें नहीं चाहिए. ठीक है, तो डिलीट दिस लाइन. ठीक है, तो वैसे हमारे पास अभी क्या है? 10 फील्ड है. ठीक है, now after that you require to preview your rows. Means whatever the data is there in the Access, that Access staff table, that should be visible in this. So how many rows you want to see at a time? Now suppose you are having data with lakhs and lakhs of rows, then you require to enter this value. Okay, currently I want to see only first 10 rows. Okay, in the preview panel. Okay, so now this is the data we required. Okay, यही है हमारा डेटा जो एक्सेस में था. ठीक है, सो क्लोज. सो हमने जो एक्सट्रैक्ट प्रोसेस किया वो अभी हमने सक्सेसफुल कर लिया. दैट इज वन ऑफ द प्रोसेस इन द ETL. ओके, क्लियर हुआ सबको ये?
Any question up till now, students? Okay, so I can assume कि अभी तक का सबको समझ में आया है, ठीक है? Now what you require to do is you require to do some transformation process, okay? But before transformation आपको ये भी डालना होगा कि after transformation आपको इसको कहाँ पे लोड करना है, ठीक है? So now what we will do, we will go for the output first, okay? So output कौन सा होगा? तो output access output, ठीक है? तो वो access output हम लेते हैं अभी, और इन बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सपोज हम एक कॉलम यहाँ पे ऐड करेंगे, दैट इज सीक्वेंस नंबर, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम सारे एक एक करके देखेंगे जो भी आपके इसमें है, ठीक है? सीक्वेंस नंबर. सो व्हाट इट विल डू, इट विल जस्ट यूज इट विल ऐड सीक्वेंस नंबर इन द गिवन टेबल, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अभी ये हमारे पास इनपुट है और उसमें हमने टेबल भी एक्सट्रैक्ट कर लिया है, डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया है, ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा सीक्वेंस है जो हमें एज अ ट्रांसफॉर्म करना है, एक कॉलम को ऐड करना है ये एक्सट्रैक्टेड डेटा के साथ. क्लियर? नाउ फर्स्ट वी रिक्वायर टू कनेक्ट दिस एंड पॉइंट्स, ओके? तो ये है हमने इसके साथ कनेक्ट किया विद द मेन आउटपुट ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है? इसका और इसका कनेक्शन हो गया. क्या करना है, सिर्फ आपको वहां पे कर्सर को लेके जाना है, यहाँ पे कर्सर को लेके जाना है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा. उसमें आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ आके यहाँ पे क्लिक कर देना है. दैट्स इट. क्लियर हुआ सबको? सो दैट वे यू रिक्वायर टू कनेक्ट दिस वर्कस्पेस. क्लियर? एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? Okay. Now after that what you require to do is you require to go to this add sequence transform and set the parameter. Okay, तो स्टैक का नाम क्या है, add sequence, और उसमें हम नई कॉलम का नाम क्या रखेंगे, तो हम नई कॉलम का नाम यहाँ पे चेंज कर देंगे, वो है सीक्वेंस नंबर. सॉरी, सीक्वेंस नंबर से हम इसको देखेंगे, ठीक है? नाउ द सीक्वेंस नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, maximum this number, increment by 1, increment by 2 किया तो कैसे नंबर आएगा, 1 3 5 like that. increment by 5 किया तो उस हिसाब से 5 के increment, ठीक है? so that way you can do. then okay, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा काम हो गया है. अब जो भी ऐड होता है उसको हम कहीं पे लोड करते हैं, ठीक है? सो लोड कहाँ पे करना है, क्लिक करो यहाँ पे. लोड कहाँ पे करना है, go to browse and you just set the output location, ठीक है? तो आउटपुट लोकेशन में जैसे मुझे डी ड्राइव में कहीं पे सेव करना है और फाइल का नाम है टेस्ट लोड प्रोसेस, ठीक है? तो ये मेरे फाइल का, ये मेरे डेटाबेस का नाम है, ठीक है? तो ये मेरे डेटाबेस का नाम होगा, ठीक है? इसको कॉपी करके रखना है. तो ये कहाँ पे है, डी ड्राइव पे है, ठीक है? अब देखो ऑटोमेटिकली उसने क्या ले लिया है, टेस्ट लोड प्रॉप इज द फाइल नेम ऑफ द डेटाबेस, और उसने एमडीबी लिया है. एमडीबी नहीं आएगा, मेरा डेटाबेस जो है वो एससीडीबी टाइप से है, ठीक है? क्योंकि मेरा हायर वर्जन है डेटा एमएस एक्सेस का, तो वो यही एक्सटेंशन से फाइल सेव करता है, ठीक है? तो दिस कैन बी एनीथिंग, एनी आउटर डेटाबेस यू कैन गिव, ओके? उसके बाद टारगेट टेबल आपको देना है. डेटाबेस तो मिल गया, टारगेट डेटाबेस. अब टारगेट टेबल कैसे मिलेगा, तो टारगेट टेबल के लिए अगेन यू रिक्वायर टू राइट टेस्ट stuff. This will be created at the time of loading. दोनों ही, कौन सा, डेटाबेस भी और टेबल भी. क्लियर हुआ सबको? ये कुछ डाउट है अभी तक? ओके, यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं देना है. You cannot give extension to table. You can give extension to database. Clear, everyone?
क्योंकि हम जब भी एक्सेल बनाते हैं तो एक्सेल की जो डेटाबेस है उसका एक्सटेंशन होता है ACCDB। उसके अंदर हम 50 टेबल बना सकते हैं। वन ऑफ द टेबल इज टेस्ट स्टाफ जो लोड होगा आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर हुआ सबको? एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? यस स्टूडेंट्स, ओके, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमने सब कुछ कर लिया, यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी सेटिंग हो गया, यहाँ पे भी सेटिंग हो गया, कनेक्शन भी हो गया। So now we will run this transformation. Okay, so now we will run this transformation and click on launch. If you want to, if you are performing this for the first time, then you require to give this transformation name. वो एक file में store होगा, that will be your cattle file. Okay, so yeah, test my load process. इसका मैंने नाम दे दिया जो डी ड्राइव में सेव हुआ है, ठीक है। अब मुझे प्रीव्यू देखना है, तो प्रीव्यू मिल गया, सीक्वेंस नंबर 1 2 3 4 5 इसी नाम से हमने सेव किया था। गो टू प्रीव्यू डेटा एंड यू विल गेट द प्रीव्यू। यू गॉट माय पॉइंट स्टूडेंट्स? एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? अच्छा, यहाँ पे भी आप प्रीव्यू देख सकते हो, क्विक लॉन्च, you will get the preview। कैसे किया हमने, यहाँ से राइट क्लिक, प्रीव्यू, क्विक लॉन्च और प्रीव्यू, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारा जो कॉलम है वो ऐड, ठीक है। अब आपको सेम चीज कहाँ पे करनी है, लेट्स से एक्सेल में करनी है। इसको निकाल दो, ठीक है। अब सेम काम आपको क्या करना है, एक्सेल से करना है। माई डेटाबेस इज नाउ एक्सेल। Excel input, Excel output, and add sequence। add sequence तो हमने ऑलरेडी देख लिया एक बार, एक कुछ और देखते हैं। कॉन्केट, ठीक है। कॉन्केट का मतलब क्या हुआ, दो फील्ड को हम इकट्ठा करके एक फील्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे हम इसका एडिट स्टेप में जाएंगे, या फिर इसको डबल क्लिक करके वी विल सेट द source database first of all, and the database is currently in the form of Excel. Okay, so now we require to see which Excel file we will use. We will use this Excel file. I have already given you this file, Excel file and ACCDB file in your assignment. Okay. Now in this Excel file we are having this type of data. Okay. The data is teacher ID, first name, last name, city, state, zip, and phone number. So these are the data we are having. Let's say 10 inputs are there. Okay. Now we want to work on this data, and my transformation is full name. Full name means instead of this 2 column, I want only 1 column, that is full name column. ठीक है, तो एक और कॉलम मुझे ऐड करना है जो फुल नेम होगा, और उसके बाद जब हम दूसरी बार लोड करेंगे तो उस टाइम पे हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को डिलीट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी रिक्वायर्ड फॉर दिस। ओके, सो नाउ वी विल अगेन गो फॉर द डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज पेंटाहो, ठीक है। तो पेंटाहो में गए हम लोग, और सबसे पहले हमने क्या किया, ब्राउज में वो फाइल को सिलेक्ट किया। कौन सी फाइल थी वो, फाइल नेम इज फाइल 2, ठीक है। वो फाइल 2 को हमने लिया, ये है फाइल 2, और इसी फाइल 2 को हमने ऐड कर दिया। तो नाउ द फाइल इज इन द सिलेक्टेड फाइल नेम, ठीक है। नाउ आफ्टर सिलेक्टिंग दिस फाइल, व्हाट वी रिक्वायर टू डू इज required to go to second tab. Now for Excel we are having different options, and in Access we are having different options, okay, because the data structure is different, right? So now in Excel also we require to set the parameter in all these tabs. So second tab is sheet tab. We now in Access we have seen from
from given list of table, which table you want to work on. Okay, and the same way here also in Excel we are having multiple sheet. Here you can see this sheet 1 है, फिर यहाँ पे 2 3 4 5 बहुत सारी शीट हो सकती है, ठीक है, उसमें से आपको कौन सी शीट पे काम करना है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे करना है. तो नाउ गेट द वैल्यू, तो यहाँ पे ओनली एक ही शीट है तो वो उसी पे हम काम करेंगे. तो दिस इज योर सिलेक्टेड शीट, ओके, जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं, ठीक है. एंड देन आफ्टर गो टू कंटेंट, तो वहां पे हमें कुछ नहीं करना, एरर हैंडलिंग में कुछ नहीं करना, बट फील्ड में आपको करना है. तो फील्ड में आपको क्या करना है, यू रिक्वायर टू सिलेक्ट द नंबर ऑफ फील्ड्स on which you want to work on, ठीक है. तो this is what the real extraction we are doing, okay. तो ये आपका हो गया काम, और फिर अब आप करेंगे प्रीव्यू रोज, और प्रीव्यू रोज में आपको सारे ही डेटा यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है. सो दिस इज एक्सेल डेटा वी आर एक्सट्रैक्टिंग, ओके, इन द ETL प्रोसेस. तो ये आपका यहाँ पे पैरामीटर सेट हो गया, ठीक है. इसका सेटिंग करने के बाद आप इसका कनेक्शन किससे करते हो, कॉन्केट फील्ड से, और इसका कनेक्शन आप करोगे आउटपुट से, ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या क्या होगा कॉन्केट में, सो कॉन्केट में यू रिक्वायर टू चेक, you require to give which two field you want to concat and based on which separator, okay. So the target field name is what, full name. Target एक और कॉलम यहाँ पे ऐड हो जाएगा, उसका नाम हम देंगे फुल नेम. और अब यहाँ पे सेपरेटर क्या आएगा, स्पेस. मैंने यहाँ पे एक स्पेस दिया है, और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में एक स्पेस आएगा, ठीक है. और उसके बाद यहाँ पे आपको देना है फर्स्ट नेम, ठीक है. उसका टाइप क्या है आपका, टाइप इज स्ट्रिंग, ठीक है. और सेकेंड इज योर लास्ट नेम एंड द टाइप इज स्ट्रिंग. क्लियर हुआ, ठीक है. एंड ओके, तो यहाँ पे आपने कॉन्केट किया है, वापस से देखेंगे तो क्या कॉन्केट किया, दो फील्ड को आपको क्या करना है, कॉन्केट करना है, और उसको नाम देना है फुल नेम, और उसके बीच में सेपरेटर आपने क्या दिया, एंटर, सॉरी स्पेस, दो के बीच में स्पेस आएगा. आप अगर कॉमा सेपरेटर कुछ भी देना चाहते हो दे सकते हो आप, कोई भी कैरेक्टर, ठीक है. और यहाँ पे आउटपुट में हमने क्या किया है, इन आउटपुट व्हाट यू रिक्वायर टू डू इज नाउ, कौन बताएगा मुझे आउटपुट में हम क्या करेंगे, व्हाई दिस आउटपुट इज, कौन बताएगा. So we have many students in the meeting, so we will start with the Sumit. Yes, Sumit, roll number 31. यस मैम. हाँ, तो क्या करेंगे अभी यहाँ पे हम लोग, आउटपुट में क्या होता है, फाइल को ब्राउज करेंगे. फाइल को क्या करेंगे, ब्राउज करेंगे. हाँ, पर हम करने क्या जा रहे हैं, कौन सा स्टेप, ETL में कौन सा स्टेप है ये, ट्रैक. हाँ, कौन सा स्टेप है ये, ओके. साक्षी, रोल नंबर 47, आर यू देयर. Yes, ma'am. Yeah, which process we are going to do I'm now? loading. Loading process, very good. So in loading, which parameter required, Sorry, ma'am. Can you repeat the question? yeah, so the process is loading, right? So in, Yes. in loading process, which parameter is the required parameter, The file, transformed file. ट्रांसफॉर्म फाइल. सी, अगर आपको कहीं पे लोड करना है तो वो लोड करने के लिए वो कहाँ पे लोड करना है, वो फाइल का नाम चाहिए, ठीक है. हाँ. तो फाइल का नाम जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, प्लस वो कौन से टाइप की फाइल है, ठीक है ना. वो दो चीजें चाहिए. जैसे एक्सेस में हमने क्या किया था, एक्सेस में जब लोड होता है तो वी रिक्वायर टू मेन पैरामीटर, दैट इज डेटाबेस एंड टेबल नेम, हाँ. ठीक है. तो वहां पे डेटाबेस और टेबल नेम से हमने स्टोर किया. एक्सेल में जब हम बात कर रहे हैं तो एक्सेल में क्या होगा, हमें क्या चाहिए, एक्सेल का फाइल का नाम चाहिए, ठीक है. तो ये एक्सेल का फाइल का नाम हमें कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे फाइल में ब्राउज करो आप, और लेट्स से डेस्कटॉप के ऊपर ही मैं यहाँ पे टेस्ट फाइल करके एक फाइल बना रही हूँ, ठीक है, एक्सेल फाइल, ठीक है.
तो ये एक्सेल फाइल में जो है वो डेटा स्टोर हो जाए। क्लियर हुआ मैम? अगर आपको इस पर्टिकुलर फाइल का लोकेशन चेंज करना है, एनी टाइम यू कैन चेंज द लोकेशन। ठीक है, क्लियर हुआ सबको ये? ठीक है, मैम इसका एक्सटेंशन सेम ही रहेगा ना, एक्सएलएस? एक्सेल ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमारा जो एक्सेल फाइल है, लेट्स से यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करो, वैसे तो दिया हुआ ही है, राइट क्लिक करो और यहाँ पे आपको चेक करना है आपका एक्सटेंशन क्या है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको चेक करना है आपके डेटाबेस का एक्सटेंशन क्या है, एमडीबी है या एससीसीडीबी है। प्रॉपर्टी में जाके चेक करो। ठीक है, अगर एमडीबी है तो एमडीबी लेना है, एससीसीडीबी है तो एससीसीडीबी लेना है। ठीक है, तो Okay. वैसे हमारा जो सिस्टम, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो उसका एक्सटेंशन क्या है उसके हिसाब से लेना है। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, सो नाउ वी विल डू दिस। ओके, हमने यहाँ पे कंटेंट में क्या है देख लेते हैं एक बार, तो वो हमारे काम का नहीं है अभी। ठीक है, और ये भी अभी हमारे काम का नहीं है। यहाँ पे भी हमें गेट डेटा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओके कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? चलो स्टूडेंट का नाम लिख रहे हैं। Next is Nitesh. Are you there, Nitesh? Roll number 54. Yes, ma'am. Okay, so now we have set all the parameter. Transformation is also ready. Now what next? अब क्या करेंगे हम? सब कुछ रेडी हो गया। रन करेंगे। रन करेंगे। ओके, तो अभी हम रन करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर टिक मार्क आ जाता है इसका मतलब हुआ कि डेटा जो है वो प्रॉपरली क्या हुआ है, रन हुआ है। सारे ही स्टेजेस पे प्रॉपरली रन हुआ है। ठीक है, ये सुन, तो यहाँ पे हम लोग अब ये कर रहे हैं, देखो यहाँ पे चेक करेंगे फुल नेम इज दैट। प्रीव्यू डेटा में देखो सब लोग, तो यहाँ पे आपको दिखेगा फुल नेम। हमने कॉन्केट करके एक फील्ड लिया था जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को क्या किया था, कॉन्केट किया था, और बीच में हमने क्या लिया था, स्पेस। ठीक है ना, क्लियर हुआ सबको ये? तो सबसे पहले क्या किया हमने, इनपुट में से हमने डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए इनपुट फॉर्मेट लिया। सबसे पहले एक्सेल इनपुट एंड एक्सेल आउटपुट कहाँ से मिलेगा हमें, एक्सेल आउटपुट यहाँ से मिलेगा। ठीक है, एक्सेल आउटपुट, इससे पहले हमने एक्सेस लिया था। ठीक है, आप कोई भी डेटाबेस ले सकते हैं। ठीक है, अब वो लेने के बाद अब हमने क्या किया, सबसे पहले इनपुट में जाकर हमने जो डेटा एक्सट्रैक्ट करना है उसका फाइल सिलेक्ट किया। ठीक है, तो ब्राउज में जाके हमने फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ क्लिक कर, ऐड पे क्लिक करके उसको ले लिया। ठीक है, उसके बाद हम सेकेंड शीट पे गए और वहां पे हमने नंबर ऑफ शीट में से जो भी शीट पे हमारा डेटा है वो शीट को हमने सिलेक्ट किया, शीट वन। देन आफ्टर वी गो टू फील्ड और हमने गेट फील्ड करके सारे फील्ड ले लिए। ठीक है, यू कैन डिलीट फील्ड इफ यू डोंट वांट एनी फील्ड। ओके, एंड देन आफ्टर प्रीव्यू किया तो डेटा आना चाहिए, इट मींस प्रॉपर्ली हमने डेटा को एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, and then after we go for transformation stage. In this transformation we are having number of transformation over here, and in this we have selected concat. ठीक है, कॉन्केट पे क्लिक करके हमने क्या किया है, हमने सिर्फ उसको फुल नेम, हमारा टारगेट फील्ड का नाम फुल नेम होना चाहिए और ये दोनों फील्ड को मिला के होना चाहिए, एंड सेपरेटर, दोनों के बीच में सेपरेटर क्या होगा, स्पेस। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे सिलेक्शन किया पैरामीटर का। एंड देन आफ्टर आउटपुट, तो एक्सेल में तो बहुत ही इजी है, आउटपुट में आपको क्या देना है, जो भी आपका डेस्टिनेशन फाइल है उसका नाम। तो डेस्टिनेशन फाइल अगर नहीं है तो नाम बना दो, आप कोई भी नाम डाल दो वो बन जाए। ठीक है, क्योंकि टेस्ट फाइल डॉट एक्सएलएस वाज नॉट देयर अर्लियर, और जैसे ही हमने रन किया तो ये क्रिएट हो गया होगा। अच्छा, वो मैंने आपको बताया नहीं, बट वो होना चाहिए, ये रहा। ठीक है, पहले वो नहीं था पर अब मिल गया। ठीक है, तो दैट वे वी कैन यूज दिस। क्लियर हुआ सबको ये? ठीक है, और उसके बाद जब सारा डेटा कनेक्टिविटी के साथ सभी पैरामीटर सेट हो जाए, देन यू रिक्वायर टू रन दिस। ओके, और रन करने के बाद आपको क्या मिलेगा,
ये प्रीव्यू डेटा मिलेगा जिसमें आपने जो भी ट्रांसफॉर्मेशन किया था उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। गॉट इट एवरीवन? एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? Okay, so now what we will do, we will again go for the another transformation. मैं आपको एक में ही सारे ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रही हूँ, बट इन योर असाइनमेंट अगर आपको अलग अलग करने हैं तो आप अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है? हम लोग दूसरा एक ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे यहाँ पे, इसको हम कर देते हैं डिलीट, ठीक है? और एक दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन बीच में रख देते हैं, एंड द ट्रांसफॉर्मेशन इज शॉर्ट रो। Now the term itself says this, short row का मतलब क्या हुआ? शॉर्टिंग हो जाएगा। तो शॉर्टिंग किसके ऊपर करना है? Let's say I want to short this zip code, ठीक है? zip code क्या है? 98119 यहाँ पे है और 98122 यहाँ पे। तो आप इसको भी शॉर्टिंग में कर सकते हो, या लास्ट नेम या फर्स्ट नेम को भी शॉर्ट कर सकते हो। तो चलो हम फर्स्ट नेम को शॉर्ट करते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट नेम को शॉर्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जाइए, ठीक है? शॉर्ट रो, और कौन से फील्ड को शॉर्ट करना है वो आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है? तो ये इसमें कोई भी फील्ड नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि कनेक्शन नहीं है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर्ड अ कनेक्शन। सो नाउ व्हाटएवर द डेटा इज देयर अप टू कॉन्कैट फील्ड, अप टू कॉन्कैट फील्ड मतलब फुल नेम भी इसमें आ गया, वो सारा का सारा डेटा अब यहाँ पे हमें मिलना चाहिए। आ गया डेटा, ठीक है? Now what we require to do is we require to short first name. Ascending or descending? तो yes, ascending order में चाहिए। केस सेंसिटिव चेक करना है, yes करना है। प्री शॉर्टेड तो है ही नहीं हमारा, तो उसको हम देखेंगे नहीं, ठीक है? तो this way we require to short the data. So now here we are not actually adding any new column, we are not transforming anything, we are just changing the can say row order, okay? हम उसको ascending order में कर रहे हैं, that's it, okay? क्लियर हुआ सबको? और फिर आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे, और यहाँ पे कहाँ पे डेटा मिलेगा? टेक्स्ट फाइल ओवरराइट हो जाएगी। क्लियर हुआ? रन दिस, लॉन्च, मैट्रिक्स में जाके वापस प्रीव्यू में जाओ और यहाँ पे चेक करो। सी, ये सारा किसमें हो गया? एसेंडिंग ऑर्डर में। अगर नहीं पता चला तो आपको पता चलेगा कि 119 कहीं कहीं यहाँ पे था, वो अभी ऊपर आता है। क्लियर हुआ सबको? ये पूरा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया है, ठीक है? सो दैट वे यू कैन यूज दिस शॉर्ट। Another transformation is delete. Another transformation is split field. What you want to do is you require to split data in two field. तो हम क्या करेंगे? फुल नेम जो हमारा फील्ड है उसी को हम दो और फील्ड में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कौन से दो फील्ड? एफ नेम एंड एल नेम। क्लियर? सो कैसे करते हैं वो? राइट क्लिक, सॉरी, सबसे पहले हम इसको कनेक्ट करेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे। स्प्लिट करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो डेटा कौन से डेलीमीटर से स्प्लिट करना है? तो हमारे फुल नेम का डेलीमीटर क्या है? कौन बताएगा? हमारा फुल नेम कॉलम है, उसको हम स्प्लिट करेंगे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में, राइट? तो उसका डेलीमीटर क्या है? Yes, anyone? Either. Very good. Space. So स्पेस हमने लिया था फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में, तो हमें यहाँ पे डेलीमीटर भी स्पेस रखना होगा। यहाँ पे डेलीमीटर स्पेस, मैंने यहाँ पे एक स्पेस दिया है, ठीक है? और हमें अब कौन सी फील्ड को स्प्लिट करना है? फुल नेम। कैसे स्प्लिट करना है? स्पेस जहाँ पे भी है वहां से दो को स्प्लिट कर, वो दोनों वो पर्टिकुलर फील्ड को दो में स्प्लिट कर दो। और नए फील्ड का नाम क्या देना है? एफ नेम, उसका टाइप होगा स्ट्रिंग, और दूसरा होगा एल नेम और उसका टाइप होगा स्ट्रिंग। क्लियर हुआ सबको? ये आपको कौन से बेस पे स्प्लिट करना है वो डेलीमीटर में देना है,
कौन से फील्ड को स्प्लिट करना है, दैट यू रिक्वायर टू गिव ओवर हियर, एंड स्प्लिट बंद करने के बाद जो दो फील्ड बनेंगे उसका नाम क्या देना है वो आपको यहाँ may be possible you are having full name as first name, middle name and surname. In that case, what you will do? You require to give 3 new fields. Clear, everyone? So this is what you require to do is. और उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी इसको कनेक्ट कर देंगे इसके साथ, एंड देन रन, लॉन्च, गो टू मैट्रिक्स एंड अगेन प्रीव्यू. ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपडेटेड डेटा मिले इसमें. So now we are having updated data and again we are having 2 fields, F name and L name from full name. ठीक है, तो वो as it is आ रहा है, देखो यहाँ पे. ठीक है, so this way we will get the data. अब वही डेटा अगर आपको यहाँ पे देखना है तो प्रीव्यू में जाके क्विक लॉन्च, you can get the data. क्लियर है सबको ये? ठीक है, yes, any questions students? Okay, this is first batch. जिस बैच को कोई क्वेश्चन ही नहीं है. Okay, fine. Another transformation, that is transformation. पहले हम इसका बीच का डिलीट करते हैं और एक दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, that is called calculator. ठीक है, कैलकुलेटर का मतलब हुआ नाउ यू वांट टू कैलकुलेट समथिंग फ्रॉम नंबर ऑफ फील्ड्स एंड यू रिक्वायर टू क्रिएट वन मोर कॉलम. ओके, सो बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, दैट इज आल्सो पॉसिबल. ओके, सो लेट्स से यहाँ पे आपके पास जो डेटा है स्प्लिट फील्ड, उसका हम यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं पहले. ठीक है, कनेक्शन करने पे ही यहाँ का डेटा यहाँ तक ट्रैवल करेगा और आएगा. ठीक है, अच्छा, अभी इस पे हम जाएंगे क्या कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो पहले तो हमारे पास ये डेटा है, टीचर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, ये सारा डेटा है. ठीक है, अब इस डेटा पे हमारे पास जिप कोड. अच्छा, पहले है ना एक काम करते हैं, सीक्वेंस नंबर ऐड करते हैं. ऐड सीक्वेंस नंबर. और यहाँ पे हम करते हैं, नॉट नेसेसरी आप कोई भी डेटा के ऊपर कर सकते हो. ठीक है, मैं आपको पूरे फॉर्मूलाज बताती हूँ सो दैट यू कैन इजीली डू दिस. स्टेप का नाम सीक्वेंस नंबर इंक्रीमेंट बाय 1, उसको हमने रन किया, लॉन्च किया, डॉट 1 सीक्वेंसेस. ठीक है, अब इसके बीच में डिलीट. ठीक है, और यहाँ पे हम बीच में लगा रहे हैं अभी कैलकुलेटर. ठीक है, तो यहाँ का डेटा सबसे पहले हम कैलकुलेटर में लेंगे. ठीक है, एंड देन आफ्टर आपको कैलकुलेशन करना है. सो दिस आर द ऑल फॉर्मूलाज वी आर हैविंग जो आप यूज कर सकते हैं इसमें. दैट फॉर्मूला कैन बी राउंड, स्क्वायर. ठीक है, कुछ भी आप इसमें यूज कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर? और अगर आपको अपना फॉर्मूला कुछ करना है तो वो भी पॉसिबल है, a प्लस बी करना है वो भी पॉसिबल है. ठीक है, तो हम अभी a प्लस बी कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, उसके लिए हमारे पास जिप और सीक्वेंस नंबर है, उन दोनों को प्लस करते हैं, या फिर और हमारे पास ये भी था टीचर आईडी, तो उसको भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो पहला फील्ड है, देखो अभी यहाँ पे डेटा नहीं आ रहा है. अगर डेटा नहीं आया मतलब यहाँ पे कनेक्शन बराबर नहीं. ठीक है, कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए. चेक कर लेते. यस, अभी ये कनेक्शन बराबर.
ठीक है, तो इससे पता चलता है कि कनेक्शन इज प्रॉपर और नॉट, each and every data must be there. ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, टीचर आईडी ना, टीचर आईडी, ठीक है, कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं हम लोग, ए प्लस बी, न्यू फील्ड का नाम क्या देंगे, सम डेटा, ठीक है, क्लियर हुआ, क्या किया हमने, सीक्वेंस और टीचर आईडी को सम कर दिया, जैसे सैलरी प्लस बोनस को सम करके आपको अपनी नेट सैलरी मिलेगी, वैसे आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद वापस से कनेक्शन, ठीक है, क्लियर हुआ सबको, एरो इसी तरीके से आना चाहिए, पहली बार हमने उल्टा एरो ले लिया था इसलिए वो एरो, ठीक है, छोटा नंबर लेते हैं, वो बहुत बड़ा नंबर था इसलिए, ठीक है, सो नाउ सीक्वेंस एंड सीक्वेंस दोनों को मिला के अभी हमारा क्या बनता है, ओके, मे बी पॉसिबल टीचर आईडी इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, इसके लिए वो नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने इंटीजर फॉर्मेट दिया तो इंटीजर में प्लस करने के लिए दोनों इंटीजर होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो ये सम डेटा हमें टोटल मिल रहा है, ठीक है, वैसे ही अगर आपको स्क्वायर रूट करना ही सीखा तो स्क्वायर रूट भी कर सकते हैं वापस, उसको अगर स्क्वायर करना है पावर तो भी कर सकते हैं, जो भी आप इसमें जितने भी आपको फॉर्मूला दिख रहे हैं, एनी फॉर्मूला यू कैन यूज यहाँ, ठीक है, सो दिस इज योर कैलकुलेटर, ठीक है, नाउ सपोज यू वांट टू सी अनदर ट्रांसफॉर्मेशन, तो एक दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज कॉल्ड नंबर रेंज, कोई बताएगा मुझे नंबर रेंज किसके लिए यूज होता है, यस एनीवन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में आपने देखा होगा नंबर रेंज बहुत डिटेल में है, डिस्क्रिटाइजेशन आई थिंक थियरी में पढ़ा होगा आपने और सुना होगा मैंने, ठीक है, और डेटा डिस्क्रिटाइजेशन मींस कैटेगरी में डेटा को कन्वर्ट कर देना, सपोज यू आर हैविंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ लेट्स से sequence number 1 2 3 4 5 and you want to convert this data into three categories, okay, so now what you will do, you will use number range, okay, तो number range को कैसे लेते हैं, देखो, ठीक है, इनपुट फील्ड कौन सा है आपका, सीक्वेंस नंबर, ठीक है, और वो सीक्वेंस नंबर को आपको क्या करना है, इस तरीके से डिवाइड करना है, जैसे अपर बाउंड 5 तो वैल्यू लेस देन 5, इसका मतलब लोअर बाउंड कुछ भी नहीं है, लोअर वैल्यू कितनी भी होगी और अपर वैल्यू 5, मतलब लोअर वैल्यू से 5 तक का जो भी डेटा होगा उसमें ये वाला लेबल जो होगा वो इंसर्ट होगा, लेबल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे लेस देन 5, ओके, 5 to 10 के बीच में होगा तो 5 to 10 का लेबल आएगा, और 10 से जितना भी बड़ा है मोर देन 10 का लेबल है, so that way we are dividing the data in 3 parts, okay, so यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, और आउटपुट फील्ड का रेंज क्या होगा, रेंज वैल्यू, वो हमने वैल्यू को नाम दिया, so now what you require to do is again select, ठीक है, पूरा सिलेक्शन हो गया है तो रन करो इसे, and now you can see the updated preview data, that is this, okay, so now in sequence number 1 to 4 we are having this less than 5, क्योंकि हमारा अपर बाउंड 5 के नीचे जो भी डेटा था वो सारा लेस देन 5 में आएगा, 5 से 10 के बीच का डेटा 5 10 के बीच में, और 10 से ज्यादा का डेटा जो 10 और 10 से ज्यादा का मोर देन 10, तो देखो इस तरीके से पूरा डेटा 3 पार्ट में डिवाइड है, so now we are actually converting our data in a numerical value to which value, categorical value, एक कैटेगरी में कन्वर्ट हो गया, क्लियर हुआ सबको, yes any question students, okay, so fine, we will discuss Pentaho assignment quickly, okay,
पेंटाहो असाइनमेंट में आपको क्या करना है, यू कैन यूज MS एक्सेल एंड MS एक्सेस, ओके, ये दोनों में से कोई भी एक यूज करो अभी, ठीक है। एंड देन आफ्टर आपको ये असाइनमेंट को फॉलो करना है, ठीक है। असाइनमेंट कैसे है, ACCDB के ऊपर असाइनमेंट है, आप इसकी जगह पे अगर एक्सेल फाइल लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये ACCDB अगर से भी करो और एक्सेल फाइल से भी, फिर आपको शॉर्ट करना है, रेंज, डिस्क्रिटाइजेशन जैसे मैंने आपको बोला था, सीक्वेंस ऐड करना, स्प्लिट करना, डेटा को रिट्राइव करना, ठीक है, पार्ट ऑफ डेटा रिट्राइव करना, लोड करना, ठीक है। एंड देन स्ट्रिंग फंक्शनलिटी, हाँ स्ट्रिंग हमने नहीं देखा अभी तक, हम स्ट्रिंग भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। स्ट्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, स्ट्रिंग ऑपरेशन करके ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको यूज करेंगे हम लोग। पहले यहाँ का डेटा लेंगे, यहाँ पे लोड करेंगे, ठीक है, and click on the string operations. Now you can use this particular operations, okay. अगर कोई string डेटा है उसको अगर आपको ट्रिम करना है, लेफ्ट ट्रिम, राइट ट्रिम, ठीक है, जो भी करना हो, फिर आपको लोअर केस अपर केस में कन्वर्ट करना है, आपको फिक्स लेंथ देने के बाद उसको पैडिंग देना है, उसको पैडिंग कैरेक्टर के साथ देना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमारे पास डेटा है, फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग दिस डेटा, ओके। तो यहाँ पे सपोज आई एम हैविंग लास्ट नेम, ठीक है, सो लास्ट नेम जो है उसका मैं फिक्स विड्थ कर दूँ, ठीक है। तो फिक्स विड्थ कितने कैरेक्टर की करूँ मैं यहाँ पे, तो लेट्स से माय फिक्स विड्थ ऑफ लेट्स से 15, ठीक है। 15 की यहाँ पे हम विड्थ कर देते हैं, पैडिंग लेफ्ट कैरेक्टर स्टार, ठीक है, और लेंथ इसकी रहेगी लेट्स से 15, ठीक है। तो सारा का सारा जो लास्ट नेम का डेटा है वो 15 की लेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां पे 15 से कम है वहां पे स्टार है, ठीक है। सो दैट वे यू कैन डू। अदर दो थिंग इज, जैसे फर्स्ट नेम का डेटा है उसको आपको पूरा का पूरा लोअर केस में चाहिए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। या फिर आपको उसको ट्रिम करना है, इधर से इस तरफ ट्रिम करना है तो भी पॉसिबल है, जैसे कि एल ट्रिम है, तो एल ट्रिम को हम एल ट्रिम का डेटा है, एल नेम का डेटा है उसको हम ट्रिम करते हैं राइट साइड की तरफ, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रिंग के ऊपर जो भी आपको लोअर केस में कन्वर्ट कर देना है या इनिशियल कैपिटल रखना है, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर रिमूव करना है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज स्ट्रिंग ऑपरेशन, और इसको हम रन कर सकते हैं, लॉन्च एंड देन यू कैन सी द प्रीव्यू, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे ये पूरा लास्ट नेम का डेटा जो है वो 10 में डिवाइड हो गया है, और बाकी का जो है वो उसमें क्या आ गया है, 15 में डिवाइड हुआ है, 15 कैरेक्टर्स, और अगर 15 नहीं है तो बाकी का स्टार हो जाएगा, ठीक है। ये देखो लोअर केस में हो गया, ठीक है। तो उस तरीके से आप डेटा को क्या करते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया सबको? अच्छा, इसको मैंने लेफ्ट ही रखा था तो लेफ्ट ही आ गया, राइट करना चाहिए, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ सबको? तो ये आपको अपने पेंटाहो के असाइनमेंट में करना है। कैसे करना है उसकी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे है। Thank you, everyone.